بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمیشہ کی طرح رائٹ وے فار ایجوکیشن یوٹیوب چینل میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 کے بارے میں، جس میں ہم نے آخری لیکچر میں پڑھا کہ جو جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ ہے، جو جموں اینڈ کشمیری آرگنائزیشن ایکٹ ہے، یہ کیسے بنا، ٹھیک ہے نا میرے دوستو، کس طرح سے یہ یہاں پہ پاس ہوا، ٹھیک ہے دوستو۔ اور یہ کس کا ایکٹ ہے ہم نے پڑھا، سر ہم نے پڑھا جو یہ جموں اینڈ کشمیری آرگنائزیشن ایکٹ ہے، یہ ایکٹ ہے پارلیمنٹ کا، ٹھیک ہے دوستو۔ پہلے یہ کیا ہوا کرتی تھی، سٹیٹ، اب اس کو بفریگیڈ کیا گیا دو یوٹیز میں، ایک ہو گیا ہمارا جموں اینڈ کشمیر یوٹی اور ایک ہو گیا لداخ یوٹی، اور اس کے کچھ ریزنز بھی دیے گئے یہاں پہ، انٹرنل سیکورٹی اور ریجنل ایسپیریشنز۔ تو میرے دوستو، جو یہ جموں اینڈ کشمیر آرگنائزیشن ایکٹ ہے، اب یہ انیکٹ کب ہوا، ہم نے پڑھا یہ 9 اگست 2019۔ ڈیٹز امپارٹنٹ ہے، یہ ڈیٹ یاد رکھنا، یہ ڈیٹ آپ کو جو ہے کسی بھی حالت میں یاد رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ سب سے امپارٹنٹ ڈیٹ ہے ری آرگنائزیشن ایکٹ میں۔ تو کب یہ انیکٹ ہوا، 9 اگست 2019۔ اب دوستو، جب کوئی بھی ایکٹ بنتا ہے، جب کوئی بھی کانسٹیٹیوشن جو ہے بنتا ہے، کوئی بھی لا جو ہے بنتا ہے، تو اس کو کیا ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی دن جو ہے فورس میں آتا ہے، پھر اس کو فورس میں لایا جاتا ہے، یعنی اڈاپٹ کب ہوا، 9 اگست۔ اب فورس میں یہ جو ہے یہ کب آیا، یہ ہم نے آج پڑھنا ہے، جو یہ فورس میں کب آیا، 29 اکتوبر 2019۔ تو اور ہم نے کل کیا کیا پڑھا، کس طرح سے جو یہ ایکٹ ہے یہ پاس ہو گیا راجیہ سبھا میں، پھر لوک سبھا میں میرے دوستو۔ اس کے بعد ہم نے کچھ پڑھا کس کے بارے میں، پریزیڈنٹل آرڈر کے بارے میں۔ اس کے بعد ہم نے اور کیا پڑھا اس کے بارے میں، تو ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے لیجسلیچر اسمبلی جو ہے پارلیمنٹ کے برابر ہوئی، اور پارلیمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے برابر ہوئی۔ تو یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ بل جو ہے کس طرح سے داخل کر پایا پارلیمنٹ میں۔ تو اور ہم نے کس کے بارے میں پڑھا، جو ہمارا ری آرگنائزیشن ایکٹ آف جموں اینڈ کشمیر 2019 ہے، یہ 14 پارٹز جن میں 103 سیکشنز ہے اور 5 شیڈولز پر مشتمل ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے انہی شیڈولز کے بارے میں، اور ہم تھوڑا سا اوور ویو دے دیں گے کس کے بارے میں میرے دوستو، پارٹز جن میں کیا ہے 103 سیکشنز۔ اس کے بعد ہم ان سیکشنز کے بارے میں بھی پڑھیں گے، لیکن دیکھتے ہیں کہ آج ہم کہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج کا لیکچر جو ہے شروع کرتے ہیں کہاں سے، یہاں سے، یعنی 5 شیڈولز، ٹھیک ہے میرے دوستو۔ اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ جو جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ ہے یہ انیکٹ کب ہوا، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے 9 اگست 2019۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ جو جموں اینڈ کشمیر آرگنائزیشن ایکٹ ہے یہ فورس میں کب آیا، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے 29 اکتوبر 2019۔ یاد رکھنا یہ ڈیٹ جو ہے بہت ہی امپارٹنٹ ڈیٹز ہے، پھر یہ نہ پوچھنا کہ ہم نے دیکھا نہیں تھا، ایگزامز میں آپ کے پیپر پہ دکھا جا سکتا ہے یہ کوشچن۔ تو میرے دوستو دیکھ لو، آج ہم پڑھیں گے 5 شیڈولز کے بارے میں۔ 5 شیڈول کا فرسٹ شیڈول جو ہے وہ کس کے بارے میں بات کرتا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو یہ جو ہے یہ شیڈولز کے بارے میں پڑھاؤں، آپ تھوڑا اس سائڈ دھیان دیجئے گا۔ جو ہمارا پہلا شیڈول ہے بات کرتا ہے راجیہ سبھا کے بارے میں، جو ہمارا دوسرا شیڈول ہے بات کرتا ہے لوک سبھا کے بارے میں، جو یہاں پر تیسرا شیڈول ہے لیجسلیچر اسمبلی کے بارے میں بات کرتا ہے، اور جو چوتھا شیڈول ہے اوتھ مینز اوتھ اینڈ افرمیشن کے بارے میں بات کرتا ہے، جو ہمارا 5واں شیڈول ہے لاز کے بارے میں بات کرتا ہے دوستو۔ تو جو یہ راجیہ سبھا ہے، اب راجیہ سبھا جو ہے اب کس کے پاس ہے، یہ جموں اینڈ کشمیر
यूटी जो है, उसके बाद राज्यसभा है, लोकसभा जो है ये दोनों में होगी, दोनों यूटीज में, यानी यूटी लद्दाख और यूटी जम्मू एंड कश्मीर। हमारा जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, अब केवल जम्मू एंड कश्मीर यूटी की लेजिस्लेचर असेंबली होगी और किसी की नहीं। और उसके बाद हो गया ओथ एंड एफर्मेशन और लाज के बारे में। तो हम यहाँ से थोड़ा पढ़ते हैं, तो आज का लेक्चर जो है शुरू करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखो जो यहाँ पर हमारा पहला शेड्यूल है, जो पहला शेड्यूल है ये किसके बारे में बात करता है? पहला शेड्यूल मैंने पहले ही आपको बोला, ये बात करता है राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। यानी राज्यसभा के जो 4 मेंबर्स होंगे, अब वो किन के होंगे? अब वो स्टेट और जम्मू एंड कश्मीर के नहीं होंगे, बल्कि किसके होंगे? यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है मेरे दोस्तों, किसके होंगे? यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मेरे दोस्तों अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे दूसरा शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी उसको कहाँ बोला जाता है? लोकसभा बोला जाता है। जो लोकसभा है वो कहाँ होंगे? दोनों में होंगी, दोनों में होंगी। तो मेरे दोस्तों कहाँ कहाँ? एक हो गया हमारा लद्दाख, एक हो गया हमारा जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी, लद्दाख यूटी, दोनों में क्या होंगी? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना दोस्तों। तो हमारा जो ये तीसरा शेड्यूल है किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में। जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन होंगी, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ की? यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो होंगे, उन्हीं के बारे में कौन सा शेड्यूल बात करता है? शेड्यूल थर्ड। अब अगर हम देखेंगे फोर्थ शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? ओथ एंड एफर्मेशन। किसके बारे में? ओथ एंड एफर्मेशन। तो मेरे दोस्तों किसका ओथ, किसका एफर्मेशन? जो लेजिस्लेचर असेंबली के मेंबर्स होंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीन्स लोकसभा, जो ये होंगे वो क्या करेंगे? वो ओथ यानी कसम उठाएंगे। तो मेरे दोस्तों जो हमारा पांचवा शेड्यूल है किसके बारे में बात करता है? किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है मेरे दोस्तों सेंट्रल लॉज के बारे में। ये बात करता है लॉज के बारे में, वो सेंट्रल लॉज जो एप्लीकेबल होंगे दोनों जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख पे। ठीक है ना दोस्तों। अब जो हम लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो 106 सेंट्रल लॉज है वो एप्लीकेबल होंगे अब दोनों यूटीज पे, जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख पे। वो स्टेट लॉज, कौन से स्टेट लॉज एप्लीकेबल होंगे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख पे? जो अभी तक चल रहे थे वो का वहाँ पे अब अप्लाई होंगे, वो अब बोला जाएंगे कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों और क्या कर दिया गया? 153 जो स्टेट लॉज को रिपील किया गया, यानी 153 जो हमारे स्टेट लॉज चलते थे जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख पे, अब उनको क्या कर दिया गया? इनको रिपील कर दिया गया। और कुछ 11 गवर्नमेंट एक्ट भी जो है उनको रिपील किया गया। तो मेरे दोस्तों और किसके बारे में ये लॉज बात करता है? स्टेट लॉज के बारे में। उन स्टेट लॉज के बारे में जो अब रह जाएंगे, वो स्टेट लॉज जो अब तक मौजूद थे वो अब रह जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख यूटी पे। वो कितने हैं? 166। अब हम बात करेंगे इन 14 पार्ट्स के बारे में, जिनमें है 103 सेक्शंस। आज हम थोड़ा सा और भी दे देंगे इन पार्ट्स के बारे में। तो हमारा जो पार्ट फर्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, वो किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है प्रिलिमिनरी, यानी प्रिलिमिनरी उसमें क्या आते हैं? उसमें हमारा सेक्शन 1 और 2 आता है। तो मेरे दोस्तों पार्ट सेकंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें हमारे कौन कौन से सेक्शंस आते हैं? 3 to 7। ठीक है दोस्तों, 3 से लेकर 7 तक जो हमारे सेक्शंस है वो पढ़ते हैं हमारे सेकंड
पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कुल कितने पार्ट्स है? 14 पार्ट्स है। तीसरा पार्ट बात करता है रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, कितने हैं? 8 से लेकर 57 तक। आप मेरे दोस्तों याद रखिएगा, जहां जहां पर सबसे ज्यादा सेक्शंस होंगे, यहाँ पे हमें ये जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है ये जो हमारा थर्ड पार्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, इसमें जो है बहुत सारे जो है सेक्शंस है, फ्रॉम कितने हैं? 8 to 57। ये बहुत सारे होते हैं, 8 to 57, इतना किसी में नहीं है, तो इसलिए आपको ये ज़्यादा याद रखना होगा। और क्या है इसमें, तो हम यहाँ पे देखते हैं, जो यहाँ पर पार्ट 4 है किसके बारे में बात करता है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। यहाँ पे पार्ट 6 किसके बारे में बात करता है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। अब हम देखेंगे पार्ट 7 किसके बारे में बात करते हैं? कुछ मिसलेनियस ट्रांजिशनल प्रोविजंस के बारे में। इसमें हमारे कितने सेक्शंस आते हैं? 67 से लेकर 74 तक। तो अब हम अगर आगे देखेंगे तो मेरे दोस्तों हमारा आ जाता है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है एडवोकेट जनरल के बारे में। किसके बारे में? एडवोकेट जनरल के बारे में। जो एडवोकेट जनरल अब रहेगा यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि यहाँ पे आप देखिए सिर्फ एक ही पार्ट आता है इसमें 79, जहाँ जहाँ पर ज़्यादा सेक्शंस आ जाएंगे, सॉरी दोस्तों, एक ही सेक्शन पड़ता है 79, जहाँ जहाँ पर आपको ज़्यादा सेक्शंस देखने को मिलेंगे, जहाँ जहाँ आपको कम, सबसे कम यानी एक सेक्शन देखने को मिलेगा, वो सेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। जैसे 79। और यहाँ पे कौन सा पार्ट पड़ता है मेरे दोस्तों? एक सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है 84। तो मेरे दोस्तों ऐसे जो सेक्शंस है ये इन पे एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे पार्ट 10 है किसके बारे में बात करता है? ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी जो एक्सपेंडिचर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू जो है वो किस सेक्शन में आते हैं? 80 से लेकर 83 तक। और हमारा जो यहाँ पे पार्ट 11 पढ़ता है किसके बारे में बात करता है? एप्रोमेंट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में, जिसमें एक ही सेक्शन है 84, याद रखना। उसके बाद हमारा आता है 12, प्रोविजंस ऑफ सर्टन कोऑपरेशंस ऑफ एनी अदर मैटर्स। यहाँ पे कितना आता है? 85 से लेकर 87 तक। तो मेरे दोस्तों अब हो गया हमारा 13th पार्ट, प्रोविजन एज टू सर्विसेज, 88 से लेकर 93 तक। तो हमारा आखिरी पार्ट जो है ये बात करता है कुछ लीगल और मिसलेनियस प्रोविजंस के बारे में। इसमें कौन कौन से सेक्शंस आते हैं? फ्रॉम सेक्शन 94 से लेकर 103। तो आपने अब क्या याद रखना है? इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, बस इतना सा देखना है कि जो हमने इन पार्ट्स के बारे में पढ़ा, इन पार्ट्स में सबसे यहाँ पे ज़्यादा सेक्शंस किस में है, सबसे कम सेक्शंस किस में है, उन पे ज़्यादा जो है ध्यान देना है। बाकी इसके बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ना है, जिसका लेक्चर आपको कल मिलेगा, यानी 1 2 3 लेक्चर्स में अब ये कंप्लीट होने वाला है। हम इसको पूरा पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट में हमारे कितने सेक्शंस आ जाते हैं? 1 और 2। आपके लिए मैंने सारे सेक्शंस लाए हैं, हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन आज का लेक्चर जो है बस इसलिए है कि आप जो है ये चीज़ें याद रखेंगे कि जो यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है, बस इसीलिए आपके लिए लेक्चर में लाया हूँ। तो बाय।